नहीं मरियम स्टार्ट करें आप। Okay, sir. Assalamu alaikum. My name is Mariam Zubair. My department is BS Biotechnology Batch 8. My roll number is 031. The topic of my presentation is chemistry of shisha. What is shisha? Shisha is also known as hookah, a hubble, bubble, etc. It is a way of smoking tobacco in which vapors passes through water before inhaling. I have made a rough diagram of shisha. The apparatus consists of water jar in which the water is present. We pour water. It is a pipe, metallic tube extending from the bottom to the bowl, from base to the bowl. Uh, it is a bowl in which carries 10 to 20 gram of tobacco, and then the saucer which holds charcoal ash. What are the accessories? The accessories are the filter, which is a device which is present at the tip of the hose, It reduces exposure to nicotine and tar. Uh, a mouthpiece is present at the bottom of the hose, from which we inhale the smoke. Here is present the aluminium foil used as a membrane between tobacco and the charcoal. Um, the consumables are the charcoal and the tobacco which we consume. Charcoal is a special type of charcoal round pellet that is easily lit, and the tobacco is both flavored and unflavored. In flavored we use fruit flavors. uh, in water jar can also be filled with milk, fruit. If you want to go more high, then you can also use the alcohol. Now at the early ages, when the shisha is discovered, there was a myth that the one puff of shisha contained 10 sticks of cigarette. Early researchers show this, but later on, Pisacek has researched the issue and finds the claim that the statement which shows that one puff of shisha is equivalent to smoking 10 sticks of cigarette is not a true. It's This statement is false. Dr. Kamal, a tobacco expert who researched on shisha for more than 15 years, uh, um, suggested that comparing shisha to cigarette is like comparing apple with oranges. These are two different things. University of Nairobi shows that shisha samples can shisha or samples and traces contains opiates including morphine, which is a pain medicine, which is a pain medicine. We can also use it in some drugs as a painkiller, and heroin. Heroin, which is highly addictive and illegal drug produced by the seed of opium poppy plant. Opium poppy plant. Now coming to the chemicals and toxics present in shisha, there are at least 82 chemicals and toxic chemicals and carcinogens present in shisha smoke. I'm not telling you all of the 82. I'm telling you some of the chemicals and carcinogens. These are carbon monoxide, nicotine, air pollutants, particulate matters, volatile organic chemicals, and polycyclic aromatic hydrocarbons, etc. I'm telling you the structure of carbon monoxide.
carbon monoxide. So the structure of carbon monoxide is carbon, triple bond, oxygen, and 2 bond pair. The bond length between oxygen and carbon is 112.8 picometer. So what is carbon monoxide? Carbon monoxide is an odorless and tasteless poisonous gas that results from incomplete combustion. It damages the central nervous system. So now the other is nicotine. Nicotine. The structure of nicotine is this. The structure of nicotine is this. The molecular formula of nicotine is C10H14 and N2. The molecular weight is 162 gram per mole. Nicotine is both seductive and stimulant. Nicotine also makes the pancreas produce less insulin, causing a slight increase in blood sugar or glucose level. In short, nicotine releases dopamine for the pleasure and motivation of brain. Dopamine is a neurotransmitter that transmits signals between the nerve cells of the brain. It feels as relaxing. It is also known as feel-good chemical. Dopamine, along with the oxytocin, serotonin, and the endorphin, play an important role in feeling happy, in feeling good, in feeling happy. So, if we consume shisha, we feel relaxing because of nicotine, because of the production of dopamine in our body. What are the smokes produced in the shisha flavor? Shisha flavors are made up by fermenting tobacco with molasses, glycerin, and fruit essence, producing a moist and a palatable mixture. The smokes are apple flavor, strawberry, mint, etc. The flavored smoke are mostly common in the youngsters. If we talk about the hookah, that is unflavored smoke that are consumed by our oldies, and chocolate flavor, clove spice flavor are also available. Mariam, excuse Alcohol me. and other beverages. Excuse me, Mariam. Yes, sir. अगर आपका वो जी, लिखने वाला काम नहीं है तो बेशक ऑफ कर दो, क्योंकि आपकी आवाज जरा ब्रेक हो रही है. अगर जब लिखने वाली चीज हो तो तब आप कैमरा ऑन कर लो. सर अगर लिखने वाला नहीं है इतना. हाँ, तो फिर बोलने वाला तो फिर आप वीडियो ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं है. ओके सर. हाँ, फिर वैसे बोल दो आप. These suggested other flavors includes chocolate, clove, spice, alcohol, and other beverages are also available in hookah flavor. This suggests that the flavored tobacco play a major important role as a motivator for using hookah, which produces the user with pleasant taste and smell. Now, if we consume shisha for 1 hour, a recent research shows that if we consume hookah for more than 1 hour, it is equivalent to consuming 100 sticks of cigarettes. Some of the people say that hookah is less harmful than the cigarette, but it's a myth. It's not a reality.
people think that it's flavored smoke or like this or that, and they say that it is less harmful than the cigarette, but it's not right. Despite the smoke being filtered through water, when you smoke hookah, you expose yourself to the addictive chemical nicotine, heavy metal, and tar. uh, the smoke goes through the water, but it is it don't become less hazardous. The tobacco in hookah has been shown to cause oral, lung, and bladder cancer, heart disease, and respiratory disease. So a hookah is smoked in a prolonged social session where the hose is used by multiple people, potentially causing smokers to expose their body to more toxic substances than cigarette smokers. When multiple people use the same hose, they are at the risk of infectious disease. They are at the risk of contagious disease. They are at the risk of causing cold, influenza, tuberculosis, herpes, etc. Now, what is now hookah and youth? Most of the people, most of our youngster use shisha or hookah, while there have been declines in cigarettes use among youth. Hookahs or shishas use among middle and high school students have been on the rise. They think that it is very modern and very cool yo-yo type. The popularity of e-hookahs among the youth is of concern for health professional educators and the parents, in part because teenagers often think hookah pipes are harmless and because long-term consequences of hookah use are still not known. Keeping yourself current on accurate information is worthwhile so that you can be trusted source of information for you. Thank you, and that's all from my side. Any question? एक आपने मरियम इसमें ये नहीं बताया हैवी मेटल्स कौन से होते हैं? सर हैवी मेटल्स बताया तो है कि एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। हैवी मेटल्स कौन से हैं उनके नाम पूछ रहा हूँ। हैवी मेटल्स के नाम। हैवी मेटल तो जनरल टर्म है ना। कौन से हैवी मेटल्स होते हैं? सर हैवी मेटल्स हैवी मेटल्स के नाम आपने नहीं बताए। इसके अलावा जितने भी इसके अंदर जो टॉक्सिक चीजें थी आपने उनकी किसी की केमिस्ट्री नहीं बताई। आपने ये भी नहीं बताया आपने नहीं 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 मेरी बात सुने। जो आपने इवन टार का लफ्ज बोला, टार की भी केमिस्ट्री होती है। कौन सी चीज ऐसी है जो नेचुरल में एग्जिस्ट करती है और उसका फ्लेवर है, फ्लेवर की केमिस्ट्री होती है? मिक्स्ड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? फ्लेवर की केमिस्ट्री मुझे नहीं थी मिली, मैंने बहुत ढूंढी थी, मुझे जितना मिला था मैंने उतना मिला। आपने मरियम मुझसे पूछा, मुझे नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा कि किसी को अपने टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल नहीं मिलता। मैंने आपको जी बोले तो मैंने आपसे पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं था किया था। मैंने आपको कहा था कि ये मैंने मुझे ये इतना ही मिल रहा है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, मैंने काफी ढूंढी थी। मरियम मैं आपका भी आपने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था या ईमेल पे पूछा था? व्हाट्सएप पे पूछा था। अच्छा जी, मैं आपके शुरू मैंने आपको जब मेल की थी तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मैंने ये असाइनमेंट बनाई है तो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशंस नहीं मिली। आपने एक पूछा है कि असाइनमेंट सबमिट करवा तो उसका पूछा है, फिर आपका मैसेज है एक सर जो असाइनमेंट बनाई है वो एमएस वर्ड पे बना के मेल कर दूं। ठीक है, ये बातें आपने पूछी हैं। उसका सर इसके बाद मैंने वर्ड पे बनाने के बाद कहा था कि मुझे केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं मिल रही। आपका 20 मार्च का मेथड है सर, मेरा टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ शीशा है, इसके कंटेंट्स जानना चाह रही हूँ और मैंने आपको जवाब दिया आई विल डिस्कस लेटर आफ्टर गेटिंग फ्री। तो आपने दोबारा पूछना था ना, फिर दोबारा आपने नहीं पूछा। मैं भी कहाँ, इतने मैसेज आ जाते हैं फिर नीचे चले जाते हैं मैसेज, मुझे भी नहीं याद रहता, दोबारा पूछ लेते हैं। दोबारा पूछने पे पाबंदी थोड़ी है। ठीक है नो सर। सर मैंने शीशे की केमिकल कंपोजिशन नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, आपने 21 मार्च को पूछा। तो
दोबारा आपने फिर राब्ता नहीं किया। हाँ पूछा था आपने, सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये फिर अब उसके बाद आप दोबारा मुझसे पूछते कि नहीं मिला, तो दोबारा अब आपके देखे ना 21 मार्च से लेके आज क्या है, 1 महीना पुरानी बात है। तो आपको भी पता है उसके बाद आपका कोई मैसेज नहीं आया, तो मैसेज नीचे चले जाते हैं फिर वो वैसे। इसीलिए तो मैंने डेटा भी कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे भेजें, मुझे ईमेल करें, रीजन उसकी भी यही है। तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। खैर इसमें आपको ना मिलने की वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या थी। आपने जब इसकी बहुत आसान तरीका बताने लगा, आपने जो भी लफ्ज लिखा था ना, हैवी मेटल्स इन शीशा, यही लिखना था ना, तो ये लिख के आप जस्ट गूगल पे भी सर्च मारते ना तो आपको मिल जाना था। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रही आपको इसमें क्या नहीं मिला। मैंने आपको उस वक्त गाइड जरूर करना था, मैंने कहा था मैं फ्री होके चले मैसेज करता हूँ या आपको बताता हूँ। अब मैं सिंपल, मैं आपके यहाँ पर मैं आपसे स्क्रीन मैंने शेयर करता बहुत हूँ। मैं एक, वेबसाइट्स देखी थी। देखिए मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम ढूंढते हैं। तो जस्ट एक सेकेंड, मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ शीशा। सर आपको भूख नहीं लगती? जी भूख नहीं लगती आपको? भूख लगती है, लेकिन अभी आप चुप करके बैठ जाओ, खबरदार बोले तो। ये देखें, आप देख रही हैं मरियम, ये मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ। कुछ मैंने लिखा था नहीं यस ऊपर, अभी सर। सिर्फ शीशा कंपोजिशन लफ्ज लिखा है ना। ठीक है, अब सिर्फ देखते जाए केमिस्ट्री कहाँ से निकलती है। शीशा कंपोजिशन, इसके आगे मैं लिख देता हूँ केमिस्ट्री। ये मैंने बिल्कुल देसी जुबान में सर्च कर रहा हूँ, कोई जिसको टेक्निकल नहीं भी ना पता वो भी कर सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इमेजेस में गया हूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखें, मैंने कुछ किया तो नहीं है, देसी जुबान में किया ना सर्चिंग। ये देखें, ये क्या लिखा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेवर्ड हुक्कास, अरोमा प्रोफाइल एंड रिस्पांस ऑफ हीटिंग। ये एक पेपर भी निकल आया। और इसके पीछे जाते हैं जरा, मैं ठहरे, यहाँ पे वो आपको तस्वीर दिखानी थी, वो आगे निकल गया। ये देखिए, देखिए कितनी तस्वीरें, हर तरह की चीजें नजर आ रही हैं ना। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नजर नहीं आ रही। ये देखिए, लड़की भी फूका फूकती नजर आ रही है। लेकिन ये सर इसका, जब कॉम्पोजिशन की आती थी तो जैसे ये आ रही है उसके सेटअप की तस्वीर, वो बस वही आ रही थी। ये सारी केमिस्ट्री अभी आपके सामने निकलती है, फिक्र ही ना करें आप। ये भी इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैनोला ऑयल, मील, सारा कुछ लिखा आ रहा है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका। नजर आ रही है आपको स्क्रीन वैसे? यस सर, यस सर आ रही है।
व्हाट इज योर फ्लेवर्ड हुक्का टोबैको, ये सब फ्लेवर्ड की केमिस्ट्री के फार्मूले आ रहे हैं, ठीक है। ये कोलतार आप कह रहे थे ना, ये कोलतार का भी आ रहा है सर। इनके नाम भी मिल जाते हैं, इनके ये भी बताया कि ये कौन कौन से फ्रूट का क्या क्या फ्लेवर है, ठीक है। उसके अलावा ये रिलेटेड इमेज क्या है, ये और ये देखिए लेमन जूस इन हुक्का वाटर इफेक्ट, ये उससे रिलेटेड है। इस इन सब के लिंक्स आगे खोलिए। हैवी मेटल, ये कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन शीशा, ऊपर नजर आ रहा है लिखा हुआ Yes, sir. लेड मिलीग्राम शीशे में कितनी है, ये उसकी सारी कंपोजिशन, और शीशे का लफ्ज भी लिखा आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको मैं आ जाता हूँ उसके हैवी मेटल्स में। ये तो मैंने जर्नल ऐसे लिखा ना, यहाँ पर लिखता हूँ शीशा केमिस्ट्री, और आगे मैं लिखता हूँ हैवी मेटल्स। ये सारे के सारे हैवी मेटल्स की ये लिस्टें देखते जाएं आप कितनी, ठीक है। और अगर मैं इमेजेस में नहीं जाता, मैं वैसे देखता हूँ, तो ये देखें, ये मैं वो आपको वो नहीं गूगल स्कॉलर पे नहीं, मैं सिंपल गूगल पे सर्चिंग करता हूँ। मैंने बताया तो था कि 82 एटलीस्ट 82 केमिकल तो वो टॉक्सिक 82 केमिकल्स और तो वो कार्सिनोजेंस होते हैं, जिनमें से मैंने सबके नाम नहीं थे बताए, बताना चाहिए कुछ ना। कुछ ये के देखें, ये बताए देखें, थे। ये देखें, ये देखें, ये 18 टॉक्सिक 82 मैं एलिमेंट्स, कैसे इतनी ये याद देखें, ये रखती। देखें, 18 के नाम तो ये दे रहा है इस बिल्कुल सामने गूगल पे जब सर्च मारी ना। 18 टॉक्सिक एलिमेंट्स वर डिटेक्टेड इन द सैंपल, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मरकरी, यूरेनियम, ठीक है। ये नाम मतलब आप ये कहें ना कि मुझे उसके हैवी मेटल्स के नाम नहीं मिले, ये मैं आपको मुश्किल तरीका नहीं है, आपका तो बहुत आसान था। आपका तो वो कहते हैं ना इट पुट्टो से मिल जाती है डाटा उसका। सिगरेट का, नशे का, नशे से रिलेटेड ये सारी चीजें, इनके टॉक्सिक इफेक्ट, हर चीज तो आराम से मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले केमिस्ट्री का लफ्ज लिखा हुआ, केमिकल कंपोजिशन लिखता हूँ। लफ्ज टाइप करें तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। ये देखें, व्हाट केमिकल्स आर इन शीशा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सामने मिल गया। देखें, शीशा स्मोक कंटेन्स अदर पोटेंशियल हार्मफुल केमिकल्स दैट कैन अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड निकोटीन, ठीक है। निकोटीन की केमिस्ट्री मुश्किल है, नहीं मिलती। एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर, चलो ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, फिर एक्रिलोलिन, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सामने लिखा हुआ है। एक होता है ना कि मैंने को बड़ी मुश्किल किस्म की चीज, ये देखिए, हाउ मेनी केमिकल्स आर इन हुक्का, ये मैंने पहले भी दिखा दिया आपको। ये देखें, डज शीशा गिव द कैंसर, कैंसर कॉजिंग है कि नहीं, ये क्वेश्चन जो सीधे सीधे लिखे हुए हैं ना, ये जो मैंने आम बंदों बताए के हैं। लिए, मैं बताता हूँ, आम बंदों के लिए जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर शीशा केमिकल कंपोजिशन रिव्यू आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल में सारी डिटेल इसकी मिल जाती है। हुक्का शीशा, स्मोकिंग एनवायरनमेंट, टोबैको स्मोक, क्रिटिकल एंड एनवायरनमेंट लिटरेचर एंड द पब्लिक हेल्थ कंसिक्वेंस, ये देखें पेपर। उसके अलावा हार्मफुल फैक्ट्स ऑफ शीशा लिटरेचर रिव्यू, ये है। ये कितना डेटा है, critical and recent hypothesis of oral cancer induced by water pipe tobacco smoking, ठीक है। assessment of शीशा हुक्का smokers actually exposure to toxic chemicals, यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको केमिकल्स, कितनी चीजें हैं, हर जगह पे आपको मिल रहा है, ढेर लगा हुआ है। और दूसरा, मैंने लास्ट टाइम एक सेशन कंडक्ट किया था आपका, जिसमें मैंने कहा था काउंसलिंग सेशन सब आए, और जिसको जहाँ पे रिसर्च में प्रॉब्लम है वो मेरे पास आए। ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, काफ़ी लड़के लड़कियां आए थे, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था। आप उसमें क्यों नहीं आए, आप उसमें भी आके पूछ सकते थे। अगर आपको उधर एसएमएस पे मतलब आपने दोबारा नहीं पूछा, तो आप उस सेशन में आ जाते। और वो सेशन सीआर और जीआर के थ्रू अनाउंस हुआ था कि ये आपने मेरा अटेंड करना है। सर हफ्ता 10 दिन
पहले मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मैंने आपको मैसेज किया था तब वो कि जूम उस पे लैपटॉप पे नहीं हो रहा, वो भी नहीं नहीं, मैंने बाद में किया था, थोड़े वो दिन तो पहले आप, मोबाइल हाँ ठीक जी, हुआ नहीं था। नहीं, ये जब लास्ट टाइम सेशन हुआ उसके बाद दोबारा सेशन हो सकता था। आप, मेरा मतलब है, अगर आपको लगता था कि मैं आपको रिप्लाई नहीं किया या आप दोबारा पूछते हुए आपसे कोई हेजिटेशन थी, तो आप मुझे CRGR के थ्रू आप कहते जी कि एक और सेशन कंडक्ट कर लें, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है लिटरेचर सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बता देता। मैंने तो कभी नहीं रिफ्यूज किया कि मैंने नहीं बताना। ठीक है, आप लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लिया करें कि पूछ लिया, फर्ज अदा हो गया तो बस ठीक है, दोबारा नहीं पूछना, हम सच्चे भी साबित हो गया। वाकई देखा जाए तो आप सच्चे साबित हो रहे हैं, आपका मैसेज तो आया कि केमिकल कंपोजिशन नहीं मिली, लेकिन कोई मुश्किल तो नहीं थी ढूंढनी। आपने उसके बाद कोशिश खुद भी नहीं की कि सर ने नहीं जवाब देता तो बस ठीक है, अल्लाह मालिक। तो आप लोग पूछ लेते, उसमें कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मसला हो तो दोबारा पूछ लेते हैं, ये नहीं करते कि नहीं पूछना तो बस हो गया जो होना था। नहीं सर, वो फिर मुझे शर्म आ गई दोबारा पूछते हुए, बार बार मैसेज करते हुए, तो फिर मैंने इसलिए नहीं था नहीं, दोबारा आपने, किया। मेरा नहीं ख्याल, जिनको शर्म आनी चाहिए उनको आती नहीं है। आपने तो कोई इतने मैसेज किए नहीं है, मेरा ख्याल महीने में एक मैसेज आपका। और जिन लोगों ने मुझसे ये भी पूछना होता है कि सर आपको ईमेल मिल गई है रात के 3 बजे, उनको नहीं शर्म आती। फिर उन लोगों को भी नहीं आती जो एक ईमेल 10-10 दफा भेज देते हैं। और मतलब शर्म वाली इसमें कोई बात नहीं है। शर्म वाली ये बात होती है कि एक चीज आप मेरे बगैर कर सकते हैं लेकिन वो भी नहीं करते। हाँ जी, क्लास का टाइम क्या है, अभी तक मुझे मैसेज आ रहे हैं, हमें कितनी देर हो गई ऑनलाइन सेशन करते हुए, फिर भी मुझे आप 6 7 8 10 स्टूडेंट के मैसेज आए थे, सर क्लास कितने बजे, हालांकि CRGR बताते नहीं है आपको क्लास कितने बजे तो लेकिन नहीं आते, मसला बात जहाँ पर बात आना चाहिए वहां पे आप लोग आते नहीं है। ये बातें पूछने के लिए, एजुकेशनल रिलेटेड मटेरियल पूछने के लिए क्या इसमें शर्म वाली क्या बात।